Good morning students. This is the first video lesson of biology for class 11th, and in this video lesson we will study the second chapter of your syllabus, that is chapter biological classification. And before start the chapter, we'll have to learn about some biologists who have played an important role in the field of biology. So first of all, I would like to tell you about some important biologists. Here first one is father of biology, that is Aristotle. Aristotle is called as father of biology, and the student of Aristotle named Theophrastus is known as father of botany. Father of zoology is also Aristotle, means father of biology and zoology both are Aristotle. Father of plant physiology is Stephen Hales, and the father of taxonomy is Carolus Linnaeus. There are also some important fact about Aristotle. Aristotle is also known as father of ancient taxonomy, and Carolus Linnaeus is called as father of modern taxonomy. So now we will study the mode of classification given by different scientists. So the first one category is two kingdom classification, that was given by Carolus Linnaeus. ये जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन था ये कैरोलस लिनियस ने दिया था, एंड कैरोलस लिनियस डिवाइड two categories. First one was kingdom Animalia and the second is kingdom Plantae. In kingdom Animalia he grouped all the animals including phylum Protista, and in the kingdom Plant he included all the plants and also included bacteria and fungi, because they can also possess photosynthesis. So this was the first classification of two kingdom given by Carolus Linnaeus. So Carolus Linnaeus के अकॉर्डिंग उन्होंने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया. पहला था किंगडम एनिमेलिया और दूसरा था किंगडम प्लांटी. किंगडम एनिमेलिया में सारे एनिमल्स और फाइलम प्रोटिस्टा के मेंबर्स आ गए, और किंगडम प्लांटी में सारे प्लांट्स एंड बैक्टीरिया एंड फंजाई को इंक्लूड कर लिया गया. नाउ वी विल स्टडी द सेकेंड क्लासिफिकेशन which was given by R.H. Whitaker. So R.H. Whitaker gave the five kingdom classification, in which he divided the kingdom into five categories, and these five categories are as follows. He divided the organisms into five kingdoms, that are Monera, Protista, Plantae, Fungi and Animalia. And in kingdom Monera all the prokaryotic animals are grouped. Means kingdom Monera के अंदर उन्होंने जितने भी prokaryotic animals थे उनको फिक्स कर दिया, एंड बाकी अदर ऑर्गेनिज्म को रखा गया यूकैरियोटिक में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट. सो ऑल द सेल्स which have less developed nucleus and lack of nuclear membrane are known as prokaryotic cells, and the cells having well developed nucleus are called eukaryotic cell. तो on the development of nucleus दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया सेल को, एक तो प्रोकैरियोटिक सेल और सेकेंड वन इज यूकैरियोटिक सेल. सो द एनिमल्स हैविंग प्रोकैरियोटिक सेल्स आर ग्रुप्ड इनटू फाइलम मोनेरा, and the animals having eukaryotic cells are
fixed into another groups like Protista, Plantae, Fungi and Animalia. तो पहला ग्रुप तो हमें पता चल गया मोनरा का, ठीक है। अब जो सेकेंड ग्रुप है, सेकेंड ग्रुप के लिए भी कुछ और लेवल पर इन्होंने डिफ्रेंसिएशन किया। यूकैरियोट्स को आगे फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। फर्स्ट वन इज़ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स एंड द सेकेंड कैटेगरी इज़ मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स। यूनिसेलुलर मीन्स जहाँ पर सिंगल सेल हो, मल्टी सेलुलर मीन्स जहाँ पर एक से ज़्यादा सेल्स हों, यानी कि बहुत सारी सेल्स हों। तो इन यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स फाइलम प्रोटिस्टा वर इंक्लूड। फाइलम प्रोटिस्टा को रखा गया है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स में। देन we jumped on multicellular organism. So on the basis of multicellularity there are two subdivisions. First on the basis of presence of cell wall and second is without cell wall. यानी कि फर्स्ट कैटेगरी में ऐसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट थी और कुछ ऐसे जहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट थी, ठीक है। तो पहले हम इस कॉलम को स्टडी कर लेंगे जहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट थी। So the group of animals in which cell wall is present are divided into two subcategories, kingdom Plantae and kingdom Fungi. So kingdom Plantae are autotrophic or phototrophic and kingdom Fungi are heterotrophic. Means with cell wall, यानी कि सेल वॉल वाले ऐसे ऑर्गेनिज्म जो खुद से अपना फूड प्रिपेयर कर सकते थे, फोटोसिंथेसिस कर सकते थे, उनको मर्ज किया गया किंगडम प्लांटी में। एंड द एनिमल्स विच कांट प्रिपेयर देयर ओन फूड आर ग्रुप्ड इनटू किंगडम फंजाई। सो बेसिकली सेल वॉल के बेसिस पे जो हम सब डिवीज़न हमने किया था उसमें दो कैटेगरीज थी, एक फोटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। Phototrophic means those organisms which can prepare their own food in the presence of sunlight by the help of photosynthesis। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड प्रिपेयर कर सकते थे। तो ये सारे के सारे आ गए प्लांटी में। बट फंजाई दे डोंट हैव क्लोरोप्लास्ट, उनके पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता एंड दे कांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, सो दैट्स वाई दे आर ग्रुप्ड इनटू हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक मीन्स होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट हो। एंड द नेक्स्ट कैटेगरी वॉज द एनिमल्स विदाउट सेल वॉल, बिकॉज जब हम किंगडम एनिमेलिया पर आते हैं तो सेल मेम्ब्रेन डेवलप हो जाती है, देयर इज़ नो सेल वॉल, सो द एनिमल्स हैविंग नो सेल वॉल आर ग्रुप्ड इनटू किंगडम Animalia. So in this video lecture we have studied all the 5 kingdoms given by Robert R.H. Whitaker, that is Monera, Protista, Plantae, Fungi and Animalia. एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ आपको दोबारा से क्लियर हो जाए। जहाँ पर प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे उनको रखा गया मोनेरा में, मीन्स इनमें सिंगल सेल थी और ये प्रोकैरियोटिक सेल थी। फिर हम आए थे यूकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन में, यानी कि वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस था, और इस कैटेगरी को हमने दो सब डिवीज़न में डिवाइड किया था। पहला था यूनिसेलुलर और दूसरा मल्टी सेलुलर। तो यूनिसेलुलर में हमारा ग्रुप आ गया था प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा में जितने भी प्रोटोजोन्स हैं या यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स हैं वो सारे मेंबर्स इसके अंदर आ गए थे। देन वी जम्प्ड इनटू ग्रुप मल्टी सेलुलरिटी। तो मल्टी सेलुलरिटी के लेवल पे दो कैटेगरीज आई थी, एनिमल्स हैविंग सेल वॉल एंड एनिमल्स विदाउट सेल वॉल। तो सेल वॉल वाले ऑर्गेनिज्म को हमने उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। अगर कोई एनिमल या ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर सकता है, फोटोसिंथेसिस कर सकता है, तो उनको किंगडम प्लांटी में ग्रुप कर दिया गया, और जो खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते फूड, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, उनको किंगडम फंजाई में प्लेस कर दिया गया। एंड इसके बाद आया था हमारा नेक्स्ट फाइलम विच वाज विदाउट सेल वॉल। एंड विदाउट सेल वॉल मीन्स यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन डेवलप हो गई थी
and all those organisms which have no cell wall, only cell membrane, are grouped into kingdom Animalia. So this was the 5 kingdom classification given by R.H. Whitaker. In the next video lesson, we will discuss some deep facts about these classifications. Thank you, students.